Morning, everyone. Any questions from what we discussed last time? Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, yes. Okay, last time, any questions? Okay, so in the last class, we've discussed discount rate. So so what we have discussed so far, that valuation for DCF model, the valuation can be broken into three steps. One, future benefits, FP. Second, monetary value. And third is discounting. This is what we've discussed. Now, for discounting, I need discounting rate. ये अपना हो गया, ठीक है. Now let's come to the first and second steps. So if you purchase equity shares of, let's say, company A, equity share for company A, what are the future benefits that you will receive from this equity share? So now we're doing this step one. We're doing this step one of finding out, calculating the future benefits, and then we'll move to step two, which is converting into monetary value. Okay, Hanji. So if you purchase an equity share, what future benefits you will get from that equity share? Boliye. Nothing. Dividend. Okay, dividend. What else? What else? Appreciation of the equity. Appreciation. It could be depreciation as well. So depreciation, appreciation of price. Okay, or dividend price, or that's it. और कुछ नहीं होता शेयर खरीदने से, आपको कुछ नहीं मिलता. Shareholding. Sorry, Ownership. ownership. Okay, or guys, come on. This should not be too difficult for you to list down these things, especially at this stage of the program. Shareholding. Shareholding ownership ही हो गया ना. Okay. हाँ जी, और आपके हिसाब से यही सिर्फ दो तीन चीजें ही मिलती हैं जो अगर आप शेयर परचेज करते हो. ठीक है. So
You get bonus shares as well. You get voting rights as well. ठीक है. And the list can go on. Now, when you look at so when you look at This ownership, is a part, can be a part of the voting दीपक right, आपका आवाज क्लियर नहीं आ part रहा of है. ownership. Deepak, I can't hear you very clearly. One, you know. So this voting rights or this ownership, the shareholding and this voting right gives you what? Gives you decision making power. Which means if you take correct or better decisions, Yeah, I was just saying this bonus shares can be a part of dividend, and voting rights is already included in this ownership. okay, so then profits will increase, which in turn means you have high dividend or price. ठीक है, so इसलिए वोटिंग राइट और ओनरशिप जो है इसको अलग से मैं नहीं ले रहा हूँ. यहाँ तक किसी को डाउट? So I'm removing this. कोई डाउट? ठीक है. And then bonus shares. ठीक है. Bonus share is what? So suppose if you get additional share. ठीक है. So which means if you have one share, you will get another share. So which is again included in the price. क्योंकि अगर आपको एक शेयर का प्राइस 10 है और आपको एक और शेयर मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका वैल्यू 20 रुपीज हो जाता है. तो अगर मैं पर शेयर वैल्यू निकाल लेता हूँ तो मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ शेयर दैट यू हैव will give you the total value of your portfolio. So I don't need to take bonus share separately. So hence bonus shares will go off. So hence जो दो benefits आपके बचते हैं वो यही बचते हैं. देख लीजिए यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए. Any questions on this? So which means if you purchase equity shares, the benefit that you will get is dividend and the price, be it an appreciation or be it a depreciation. These are इसको the only कैपिटल two. गेन और लॉस भी बोल सकते हैं. हाँ. Second point is capital gain and loss only. Last time, any doubt in this? So these are the two benefits that you will get. The other benefits are automatically, directly or indirectly, are being covered into these two benefits. So which means if we are able to list this, we're done with the first step, which means future benefits. Any question?
Okay. Now, there are two types of investors. One who will not sell the share in future, and second who intend to sell the share after T. T is your time. Okay. So, for example, on the first category, you will have the kind of investor that you will see in the first category are promoters, are the real owners of the company who do not, for example, Mukesh Ambani. He do not intend to sell the share. He is not going to sell the shares. He will keep the shares with himself because that gives him the powers to sit in the board or to take those decisions. So people like him will fall into first category who will not sell the shares in the future, whereas the investors like you and me, hedge funds, mutual funds, FPI, will fall into second category, because when we purchase the shares, we're pretty clear that we will purchase the share and we will sell it after some time. Whenever we get the appreciation which we believe is the right price to exit, we will sell the shares. Any question in this part? Okay, so now reassess this future benefits. If so, suppose, let's assume Mukesh Ambani or a promoter who is not going to sell the share and falls into the first category, will he or she ever get this second benefit of price? ये benefit तो इसके लिए redundant हो गया ना? हाँ या ना? Which means the first category जो investors होते हैं उसके लिए जो future benefits होते हैं वो सिर्फ dividends ही होते हैं. But जो second category of investors होते हैं उसके लिए dividend plus share price, be it on lower side, be it on higher side, whatever, दोनों benefits होते हैं. हाँ जी, कोई डाउट इसमें? The first category of investor, so suppose Mukesh Ambani, अगर उसका Reliance का शेयर 100 है, 100 से it goes to 140 or it goes to 200, it doesn't make any difference to him because he will not be able to make that benefit, correct? He will not be able to profit that difference. So for investors like him, this is immaterial because they are only interested in dividends because they will not get the benefit of the share appreciation or for that matter depreciation. Any question? So the first category of investors है, उनका valuation कैसे होता है वो start करते हैं. So ना देखिए, ये जब इन्वेस्टर्स होते हैं, जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, they hold the shares for an infinite period. Okay, because because they're not selling the shares. If they're not selling the shares, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है इनके.
कोई लाइफ नहीं होती, इनफाइनाइट पीरियड तक चलते हैं। बिकॉज अगर वो सेल करेंगे तो वो टी आ जाएगा कि 5th ईयर, 10th ईयर, 15th ईयर कब सेल करेंगे। बट if they're not going to sell the shares, which means they will hold the shares for infinite, which means going concern principle जो accounts में हमने किया है, going concern principle क्या होता है, the company will continue for an indefinite period of time, and that is the reason why the investors who fall into first category will continue to receive benefits or dividends for an indefinite period of time. ठीक है, so let's plot the future benefits. So future benefits क्या होंगे? So ये जो जीरो है ये टुडे है, ये मैं नंबर लाइन प्लॉट किया आपके लिए. So the one means what? End of the first year. One means end of the first year, and so on. ठीक है, end of the first year, end of the second year, end of the third year, and so on. ऐसे आपको समझना है. और जो जीरो है वो टुडे है, जहां पे आप खड़े हो. So which means जीरो से लेके वन एक साल हो जाता है. From 1 to 2 is the second year, 2 to 3 is the third year, and so on. Any doubt in the number line? So आपके जो फ्यूचर बेनिफिट्स जो फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगा, अगर आप फर्स्ट कैटेगरी इन्वेस्टर हो तो D1 मिलेगा, सेकंड आपको D2 मिलेगा, फिर D3 मिलेगा, D4 मिलेगा, D5 मिलेगा, चलता जाएगा, और आपको जो लास्ट मिलेगा वो D इनफाइनाइट मिलेगा. हाँ या ना? कोई डाउट? अगर आपका डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू K% है, ठीक है, अगर आपका डिस्काउंट रेट K% है तो आपकी जो वैल्यू होगी, वैल्यू क्या होगी? D1 अपॉन 1 प्लस K रेज़्ड टू पावर 1 प्लस What is K? डिस्काउंट रेट. देखिए यहाँ तक ये क्वेश्चन भी फोकस करिए एंड सी आपको समझ आया क्या. इंपॉर्टेंट पार्ट है. सो व्हाट आर वी डूइंग? हमने कहा था TCF के 3 स्टेप्स हैं. फ्यूचर बेनिफिट्स हमने पता लगा लिए. मॉनेटरी वैल्यू, तो मान लो D1, D2, D3 मॉनेटरी वैल्यू, मैं भी निकालना सिखाऊंगा ये, बट मान लो अभी मॉनेटरी वैल्यू. और थर्ड स्टेप क्या था? डिस्काउंटिंग. तो अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं जो यहाँ पे खड़ा हूँ, जीरो पे खड़ा हूँ, मुझे एक साल के बाद D1 रुपीज मिलने वाले हैं, सेकंड ईयर में मुझे D2 रुपीज मिलने वाले हैं, थर्ड ईयर में मुझे D3 रुपीज मिलने वाले हैं, एंड सो ऑन. तो मेरे लिए इसकी आज की वैल्यू क्या होगी? इस D1 को मुझे एक साल पीछे डिस्काउंट करना है, और उसको डिस्काउंट करने का फॉर्मूला क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू विच इज D1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस K रेज़्ड टू पावर 1. हाँ जी, कोई डाउट यहाँ तक? सिमिलरली मैंने D2 को डिस्काउंट किया, सिमिलर D3 को डिस्काउंट किया, एंड सो ऑन, और सबको टोटल कर दिया. यही मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर बेनिफिट दैट आई विल रिसीव इन द फ्यूचर. यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए. 1 मिनट दे रहा हूँ, उसको एब्जॉर्ब करो, कुछ पूछना है तो पूछिए.
डाउट? Any doubt in the equation that I've created, which is highlighted in orange? हेलो या फिर सर, ये फर्स्ट टाइप का जो इन्वेस्टर है वो फ्यूचर में इन्फिनाइट पीरियड तक सर शेयर्स को होल्ड क्यों करके रखा रहेगा? क्यों का कोई कारण नहीं है, दोनों टाइप के इन्वेस्टर्स हैं वो। अगर आपको होल्ड करना है तो मैं आपको फर्स्ट टाइप में डालूंगा, होल्ड नहीं करना तो मैं सेकंड टाइप में डालूंगा। वो क्यों करना नहीं करना वो तो उसका डिसीजन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कंपनी के बोर्ड में बने रहना है तो आप शेयर नहीं बेचोगे ना। यस सर। जैसे आप शेयर सेल करोगे आप कंपनी के बोर्ड से निकल जाओगे ना। करेक्ट? यस सर, यस सर, यस सर। आपके पास एक और प्रॉपर्टी है, लेकिन यू हैव सेकंड प्रॉपर्टी, और वो आप बेचने वाले हो अभी, मतलब 5 साल में, 4 साल में, जब भी आपको करेक्ट प्राइस मिलेगा तो आप बेचोगे। तो उसके प्राइस से आपको फर्क पड़ता है, बिकॉज वो आपको सेल करना है। करेक्ट? यस सर। तो जो आपको सेकंड प्रॉपर्टी है वो इसके सेकंड सेकंड कैटेगरी में फॉल करेगी। जो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो आपकी फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करेगी, बिकॉज यू डू नॉट इंटेंड टू सेल द शेयर्स, इसलिए आपको उसके डिविडेंड से कोई लेना देना, सॉरी, उसके आपको प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। मान लो वही प्रॉपर्टी आपने रेंट पे डाल दी, लीज पे दे रखी है आपने वो प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको कभी नहीं बेचनी है वो आपने किसी को रेंट पे डाल रखी है। तो आपको उस प्रॉपर्टी से क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? सिर्फ रेंटल्स ही मिलेंगे ना। शेयर, आपको उस प्रॉपर्टी का जो प्राइस है उससे तो कोई लेना देना ही नहीं होगा। Okay. ये ऑरेंज इक्वेशन आई डू नॉट वांट यू डेरिवेशन में लास्ट टाइम एनी डाउट इन दिस इक्वेशन? इसका D1 D2 जो है ये फ्यूचर वैल्यू है हाँ जी, इंस्टेड ऑफ फ्यूचर वैल्यू। करेक्ट। तो ये D1 रुपीज है, D2 रुपीज, D1 रुपीज आपको फर्स्ट ईयर में मिलेंगे, D2 रुपीज आपको सेकंड ईयर में मिलेंगे, D3 रुपीज आपको थर्ड ईयर मिलेंगे, एंड सो ऑन। इस डी डी का एक मैथमेटिकल नंबर क्या होगा वो मैं भी आपको निकालना सिखाऊंगा, बट अभी के लिए आपको मान लो D1 एक एक मैथमेटिकल वैल्यू है रुपीज में। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। जो अभी हमने फर्स्ट किया है इसको बोलते हैं डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। तो आपका जो फर्स्ट वैल्यूएशन मॉडल हमने किया है वो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल होता है। ठीक है। Now let's assume मैं भी इसको भी थोड़ा सा इसमें कुछ कराना है, वो आई विल कम बैक लेटर इन दिस। सो नाउ लेट्स assume if investor says that he intend to sell the share after 3 years, तब क्या होगा? तो उसके लिए जो उस शेयर की फ्यूचर लाइफ है वो सिर्फ 3 इयर्स हो जाएंगी। तो उसको क्या क्या मिलेगा? D1 D2 D3, और D3 में प्राइस एट द थर्ड ईयर भी मिलेगा आपको। हाँ ये ना, ये देखिए
ये सेकंड कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर है। अगर आप थर्ड ईयर के एंड में शेयर को बेचने वाले हैं तो आपको पहले 3 साल के डिविडेंड मिलेंगे और थर्ड ईयर में जो प्राइस होगा वो भी आपको मिलेगा। Yes, sir. Now this model is called as adjusted dividend valuation model. And why this is called adjusted? Because your dividend model is adjusted to include the price. ठीक है, ये दोनों कराया है मैंने आपको, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर, सेकंड कैटेगरी। अब इसमें दोनों में काम बाकी है, बट जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करे हैं, जो मैंने आपको 2 कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स बताए थे, तो इसको ऑरेंज कर देते हैं, ठीक है, और इसको लेट्स अज्यूम इसको येलो कर देते हैं, एंड ये थर्ड कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी येलो। देख लीजिए, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। Any questions so far? Okay, so adjusted dividend valuation model की इक्वेशन क्या होगी? देखिए, जो एडजस्टेड डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल है उसमें इन्फिनिटी नहीं आएगा, तो उसकी लाइफ ही 3 इयर्स की है। आपको किसी चीज से फ्यूचर बेनिफिट्स कब तक मिलते हैं? जब तक आप उसको ओन करते हैं। जब आप उसको सेल कर देंगे तो यू विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द बेनिफिट्स फ्रॉम दैट एसेट। हेंस in this I'm only taking benefits till third year, but I've added a price to that. Any question in the second equation? सर यहाँ पर हम D2 को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, D1 मल्टीप्लाई 1 प्लस जी। हाँ, करेंगे उसको। अभी मैं D1 D2 D3 में नहीं जा रहा, वो करेंगे बाद में। हाँ, Any doubt in adjusted dividend valuation model? सर इसमें बस थर्ड ईयर का मतलब प्राइस ऐड हो गया है, ये फर्क है। और इन्फिनिटी हट गया।
फर्स्ट वाले में देखो इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसमें इन्फिनिटी हट गया और प्राइस ऐड हो गया। करेक्ट, क्योंकि आप सेल कर रहे हो थर्ड ईयर में, इसलिए इन्फिनिटी हट गया है, और प्राइस आप सेल कर रहे हो तो प्राइस भी आपको मिलेगा, इसलिए ऐड हो गया। ओके। चलिए क्वेश्चन करिए। हाँ जी, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। आपको शेयर प्राइस, शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो D1 D2 D3 आपको गिवन है, P3 गिवन है, डिस्काउंटेड विच इज K गिवन है, ठीक है। 5 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करिए। सॉल्व दिस क्वेश्चन विच इज हाईलाइटेड इन ग्रीन, 5 minutes।
Done. Should we try now? What is the growth rate of dividend? जरूरत है इस ग्रोथ रेट की इसमें? Expected price at the year, end of the year. Okay. Third year. See, let's 13.63 मैं एक चीज बोल रहा हूँ, जो वैल्यूएशन अभी तक आपने किया हुआ है उसको साइड रखो, ठीक है? सो आई डू नॉट वांट यू टू learn or start learning this valuation. No. with- 1 minute. नहीं, मैं आपको नहीं बता, दीपक सुनो. नहीं, with- मैं why I'm just अरे मैं आपको correcting नहीं बोल myself. रहा, अरे मैं आपको नहीं बोल रहा. So I'm just telling everyone generally that जो भी valuation अभी आपने किया हुआ है थोड़ी देर उसको साइड रहने दो. I'm just, please do not start this valuation with any pre-assumption कि ऐसे होता है. रीजन बीइंग बिकॉज जो शायद आप लोगों ने देखा हो पास्ट में वो बहुत डिफरेंट हो सकता है, नॉट फ्रॉम अ मैथमेटिकल फॉर्मूला आखिरी में वही आएगा, बट विद द अप्रोच. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. जस्ट गिव मी अ सेशन और टू कंप्लीट दिस. अभी एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है? तो यही एक बोल रहा हूँ. हाँ दीपक बोलो. Actually, I've read it as 10th year 10. This third. Okay. I've read it wrong. Sorry. डन. उसको सॉल्व करते हैं. सो मैं इसी इक्वेशन में अगर रखूं इसको, मेरा D1 क्या है? एंड प्लीज ये जो नंबर लाइन मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ ये बनाना सीखो, ठीक है? द ऑब्जेक्टिव इज नॉट कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच होते, वो आई डोंट थिंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस फॉर मी राइट एट दिस स्टेज, ठीक है? फॉर मी व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, डू यू अंडरस्टैंड द मेथोलॉजी which I am using to calculate or arrive at that number, ठीक है? मेरे लिए भी वो इंपॉर्टेंट टारगेट है. वो नंबर की एक्यूरेसी बाद में मैं अपने आप ऑटोमेटिकली आपको ले आऊंगा, बट व्हाट इज चैलेंज इज कि आप वो मेथोलॉजी सीख पाते हो जो मेथोलॉजी हम यूज कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा और इवैल्यूएशन मॉडल्स को और कॉम्प्लिकेट करूंगा, यही मेथोलॉजी सिर्फ आगे पास थ्रू कर पाएगी. सो ट्राई, एंड आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, ट्राई एंड नॉट ट्राई, you need to get the understanding of the process or the methodology or the pattern in which I am calculating the equation. उस पे फोकस करो प्लीज. तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा अगर मुझे इसको करना है? तो मैं पहले नंबर लाइन प्लॉट करूंगा जहां पे मैं कहूंगा ओके D1 क्या है? 2 रुपीज.
D2 क्या है 2.5 एंड D3 3 प्लस 10, ठीक है। और मेरे लिए डिस्काउंट रेट जो है कि ये कितना है 10%, ठीक है। So for me then when I will start discounting, the discounting will be then, so इसकी present value this divided by 1 plus raised to power this, और मैं डिस्काउंट रेट को फ्रीज कर रहा हूँ। This is my intrinsic value. हाँ जी, देखिए कोई डाउट है तो। Any questions? सर जैसे D1 में 1.81 आया है तो ये होल टू द पावर 1 किया है ना इसमें, D1 को 2 लिया है 1 प्लस 10% टू द पावर 1। क्लियर है ये? सिमिलरली 2.1 क्या है? D2 divided by 1 plus K raised to power 2. Similarly, and then this is total of, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे मैंने यही इक्वेशन लगाई है। हाँ जी, लास्ट टाइम एनी क्वेश्चन इन दिस? हाँ। या हमने एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस क्यों मार्क किया है? हम इफ वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि हमारा जो वैल्यू ऑफ शेयर होगा वो उसमें तो हम विदाउट एडिंग एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस भी कर सकते हैं ना कैलकुलेट। So this is the model where you means the investor intend to sell the share at the end of the third year. So third year में जब वो शेयर्स बेचेगा तो उसको 10 रुपीज का शेयर अगर बिकता है तो 10 रुपीज प्राइस मिलेगा ना, तो उसका बेनिफिट नहीं है वो। सही, ये कैसे पता? एक मिनट रुको। If you sell the shares for 10 rupees, in the third year or at the end of the third year, that money that you will receive is that not future benefits? I can't show you there. बट वो तो assumption हमारे प्रेजेंट वैल्यू को लेके नहीं होगा। What does that mean? नहीं समझ आया मुझे। वो ये जो लास्ट स्टेटमेंट बोला उसका मतलब क्या है? जो हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं अभी शेयर प्राइस का, अगर हम जो assumption लेके चलेंगे फॉर द एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस लेटर ऑन दैट माइट
whatever the amount is, like for third year it 10 is रुपीज 10, हाँ तो ठीक वो है, हमें प्रेजेंट वैल्यू को देख के नहीं आएगा? प्रेजेंट वैल्यू को देख के नहीं आएगा, मैं वो समझा नहीं, व्हाट डज दैट मीन, थोड़ा आप डिफरेंट तरीके से बताओ, व्हाट डज दैट मीन प्रेजेंट वैल्यू को देख के नहीं आएगा मतलब? मैं तो उल्टा कर रहा हूँ, प्रेजेंट वो वैल्यू assumption, को, मैं तो प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर प्राइस से निकाल रहा हूँ। ओके मैं फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू से नहीं निकाल रहा, मैं फ्यूचर वैल्यू मुझे गिवन है, जो 10 रुपए है वो फ्यूचर वैल्यू है कि प्रेजेंट वैल्यू है आकांक्षा? या फ्यूचर वैल्यू। तो उससे मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ। 13.65 इज माई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द स्टॉक फॉर मी means somebody who will hold the shares for 3 years. Akansha, is this clear? यस सर। हाँ फजल बोलो, तुम्हारा क्वेश्चन शायद यही है कि वो 10 रुपीज कैसे आएगा, ये कैसे पता लगेगा, यही क्वेश्चन होगा, ये नहीं क्वेश्चन था ना सर, तुम्हारा? मैं ये कह रहा हूँ कि वो फ्यूचर में जो थर्ड ईयर में जो शेयर का प्राइस सेल कर रहा है, तो वो एक्सपेक्टेड किस बेसिस पर किया होगा? वही तो क्वेश्चन बोला मैंने, वही तो बोला कि आप वही पूछ रहे हो। हाँ वो कराऊंगा बाद में। नॉट और ओनली सर प्राइस, डिविडेंड, ये डिविडेंड जो दे रखे हैं 2 रुपए, 2.5, 3 रुपए, ये कैसे है ये भी कराऊंगा। डिस्काउंट रेट कैसा है, ये सब नंबर्स बताऊंगा कैसे आएंगे, हम करेंगे, धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हैं। सो विल कैलकुलेट ईच ऑफ दीज। और ये जो प्रेजेंट वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ये डिविडेंड का निकाल रहे हैं या फिर शेयर प्राइस का? सब चीज का, सारे बेनिफिट्स का। सारा बेनिफिट। ओके सर। उसका यूज क्या है वो देखो। अब CMP मीन्स करंट मार्केट प्राइस। इफ करंट मार्केट प्राइस विच मीन्स ये स्टॉक अभी मार्केट में ट्रेड हो रहा है 20 रुपीज का। सो ये इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर 3 साल के लिए इसको खरीदना चाहता है, उसके लिए ओवर वैल्यूड स्टॉक हो गया ये, एंड ही शुड नॉट बाय। अकॉर्डिंग टू दिस इन्वेस्टर, द वर्थ ऑफ द स्टॉक इज 13.65, और वो जो स्टॉक 13.65 की वर्थ का है, दैट इज अवेलेबल एट 20 रुपीज, हेंस फॉर हिम इट इज ओवर वैल्यूड स्टॉक, एंड हेंस फॉर हिज द डिसीजन शुड बी नॉट टू बाय। समझ आया? ये एडवांटेज, ये डिसीजन मेकिंग में लिए यूज होता है वैल्यूएशन। आप जो इंट्रिंसिक वैल्यू आती है उसको कंपेयर करते हैं मार्केट प्राइस से टू डिटरमिन वेदर इट्स अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। उसके बेसिस ऑफ डिसाइड करते हैं वेदर यू शुड और शुड नॉट बाय। एनी क्वेश्चन? सॉरी अगर सर, इस सिमिलरली अगर करंट मार्केट प्राइस मैं ये 9 कह रहा हूँ रुपीज, कि एक मिनट, 9 रुपीज होता तो ये अंडर वैल्यूड हो जाता, एंड दिस इन्वेस्टर विल देन फॉर हिम द डिसीजन इज बाय। हाँ फजूल। अगर ये क्वेश्चन में ऐड हो जाता है कि उसका करंट मार्केट शेयर का करंट मार्केट प्राइस 20 है, तो व्हाट इज द इन्वेस्टर डिसीजन, इस तरह का क्वेश्चन बन जाता। हाँ तो फिर नॉट टू बाय हो जाएगा ना डिसीजन उसके लिए। क्लियर सर। एनी डाउट इन दिस पार्ट? सर वन मोर क्वेश्चन। गो इट। जो एक्सपेक्टेड प्राइस फॉर थर्ड ईयर होगा वो यूजुअली डिराइव्ड होगा, और ये सिर्फ अजम्पशन एनालिसिस पे बेस्ड होगा? सब नंबर डिराइव्ड होगा, सब आप खुद कैलकुलेट करोगे। तो जो एनालिस्ट होता है, जो वैल्यूएशन करता है, वो सब 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 खुद कैलकुलेट करता है, और आप भी सब खुद कैलकुलेट करोगे। ये तो मैंने अभी मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ आकांक्षा, तो इसलिए मैंने आपको कुछ नंबर्स दे दिए। जैसे जैसे आप आगे जाओगे, आप हर एक चीज खुद कैलकुलेट करना सीखोगे, कैसे निकालते हैं।
Anything else? Are we comfortable with this first? Actually, second है adjusted dividend valuation model. Second model है क्योंकि first dividend वाला था वो मैंने भी कराया नहीं है, उसको रोका है वहाँ पे. So, any question in this adjusted dividend valuation model? And why is it called adjusted dividend valuation model? Because इसमें dividend valuation model को adjust करके price भी add किया गया है. और क्यों price add किया गया? Because the shareholder will hold the shares for a limited time and उसके बाद उसको बेचना है, इसलिए इसमें infinity नहीं है, वो time तक ही रहेगा. Now whether it's 3 years, whether it's 5 years, वो matter नहीं करता. And the last time, any questions in this? ये undervalued, overvalued समझ आया आपको क्या होता, कैसे होता है? आपके बैच में मैंने कौन सा एग्जांपल से वैल्यूएशन समझाया था, जो स्टार्टिंग में आपको समझाया होगा वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट, which प्रोडक्ट और which एसेट आई टुक एज एन एग्जांपल, जो वैल्यूएशन की थ्योरी हम कर रहे थे, तो कुछ क्या एग्जांपल लेते हैं? इफ anyone can help me to recollect that. We have taken some example, correct? तो कौन सा था इस बैच में? आप लोगों को खुद को याद नहीं है? ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, so I take that as a Valuation is हाँ दीपक बोल. what valuation I think we have not taken up this part. अगर आप फाइनेंशियल मॉडलिंग की बात कर रहे हैं और what? नहीं फाइनेंशियल मॉडल की बात नहीं कर रहा. जब वैल्यूएशन स्टार्ट किया होगा, आपको कोई प्रोडक्ट या कोई एग्जांपल लेके समझाया होगा ना वैल्यूएशन क्या होता है. कोई आपको शॉपिंग या कोई आपको एसेट का कोई कुछ तो एग्जांपल दिया होगा ना. मैंने हर बैच में देता हूँ. सो वो क्या एग्जांपल था, जस्ट वही पूछ रहा हूँ आपसे. It was Amazon. What I can recall. You taking the example. Amazon का तो हमने BCG मैट्रिक्स और उसमें कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में किया था. बट हमने जब वैल्यूएशन स्टार्ट किया था, कुछ लैपटॉप, शर्ट या कुछ मैंने ऐसे जनरल के डे टू डे लाइफ से कुछ प्रोडक्ट देके आपको समझाया होगा. लैपटॉप. It was laptop. हाँ, तो अगर से लैपटॉप समझाया था आपके बैच में. सो व्हाट डज दिस मीन? लैपटॉप समझाया था कि शर्ट का एग्जांपल आई थिंक मैंने दिया था. और फिर शर्ट लैपटॉप का बाद में आपको एक एक्सरसाइज कराई थी. सो अगर वो शर्ट वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था बैच में, सो उसमें मैंने आपको ये बताया होगा कि फॉर एग्जांपल आप जब शर्ट को सिलेक्ट करते हैं, तो सिलेक्ट करके आप फर्स्ट फ्लोर से बिलिंग काउंटर पे जाते हैं, तो आपकी माइंड में एक प्रोसेस होता है. और आपका माइंड क्या करता है? आपके माइंड ट्राइज टू गिव यू रेंज और ए प्राइस और ए वैल्यू कि इतने का होगा. वो इतने का होगा इज दिस 13.65 इन दिस क्वेश्चन. आपके हिसाब से ये शेयर की वर्थ 13.65 है. और फिर जब आप वो बिलिंग काउंटर पे पहुंचते हैं, जो सेल्स पर्सन होता है आपको वो जो प्राइस देता है वो ये मार्केट प्राइस है कि इतने का मिलेगा. आप अपनी जो वैल्यू होती है, आपके दिमाग ने जो नंबर या रेंज निकाला होता है, उसको आप कंपेयर करते हो इससे, एंड देन फिर आप कहते हो अच्छा ये तो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है. दिस इज व्हाट यू डू, करेक्ट? एग्जैक्टली यही उस शॉपिंग परचेज डिस्कशन में हमने किया था. और फाइनेंशियल मार्केट्स में भी आप ऐसा ही कर रहे हो. सो इक्विटी मार्केट में भी आपने एक वैल्यू निकाल लिया, उस वैल्यू को ये आपके हिसाब से वैल्यू है, कोई और कैलकुलेट करेगा, हो सकता है वैल्यू चेंज हो जाए. वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे चेंज होती है. बट जो आपने वैल्यू या रेंज निकाल ली, उसको जो आप मार्केट प्राइस से कंपेयर करते हो, तो आपको ये अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड आता है. एंड दैट हेल्प्स यू टू डिसाइड वेदर यू शुड बाय और शुड नॉट बाय. सो रिमेंबर दैट शर्ट वाला एग्जांपल, अगर वो आपको मैंने आपके बैच में दिया था, जो भी हम वैल्यूएशन में आगे मॉडल्स बिल्ड करेंगे, वो वहीं पे जाके मैं लिंक करूंगा टू एक्सप्लेन इट टू यू दैट दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू आल्सो फॉलो इन रियल लाइफ. इट्स जस्ट यू डोंट रियलाइज, बट आप वही कर रहे होते.
Any question before I close this valuation model, which is adjusted dividend valuation model? ये मॉडल एक हो गया है. कुछ पूछना है इसमें? So I take that as no, and that closes this model, which is adjusted dividend valuation model. Okay, I will go back to the first model जो मैंने पाक किया था, which is this first category of investors. This is the investor who do not sell the shares, and hence you have infinite life of the asset. Okay. Now this is more complicated because अगर infinite है तो मैं calculation कहाँ तक करूँ? 10 years, 20 years, 5 years, 4 years. So that is what the problem is. ठीक है. So इसके लिए जो concept use होता है, इसके लिए जो concept use होता है वो होता है growth pattern. ठीक है. और आपके 3 टाइप से ग्रोथ पैटर्न्स होते हैं. एक होता है कांस्टेंट ग्रोथ, नो ग्रोथ, व्हाट डज दिस मीन? ये जो आपका डिविडेंड्स हैं, इसको मैं कैश फ्लो लिख रहा हूँ. ठीक है. कैश फ्लो 1, कैश फ्लो 2, कैश फ्लो 3, कैश फ्लो 4 लिख सकते हैं ना ऐसे? इज दिस ओके? डिविडेंड इज नथिंग बट अ कैश फ्लो फॉर यू एज एन इन्वेस्टर, करेक्ट? सो ये जो कैश फ्लो के डिविडेंड 1 या कैश फ्लो 1 कितना होगा, कैश फ्लो 2 कितना होगा, कैश फ्लो 3 कितना होगा, वही ग्रोथ पैटर्न से आता है. So what does this mean? What do you mean by constant growth? Constant growth का मतलब है, let's assume if the company का dividend every year grows by 10%, तो उसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर कंपनी ने अगर 10 रुपीज दिए हैं, नेक्स्ट ईयर कंपनी 10 इंटू 11 रुपीज पे कर रही है. और उसके नेक्स्ट ईयर कंपनी एंड सो ऑन. So this is called as constant growth. कि
कंपनी एक फिक्स्ड रेट पे आपका इंक्रीमेंट करती है। हाँ जी, इसमें कोई डाउट? कांस्टेंट ग्रोथ पैटर्न क्या होता है? कांस्टेंट ग्रोथ पैटर्न मींस आपका ग्रोथ रेट फिक्स्ड होता है और उस फिक्स्ड रेट पे आपका कैश फ्लो या डिविडेंड इंक्रीज होता है। सो योर कैश फ्लो इज नॉट कांस्टेंट बट द रेट एट विच इट विल ग्रो दैट इज कांस्टेंट। कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। सर इसकी कैलकुलेशन दिखाना एक बार। एनी क्वेश्चन? ठीक है, जो नो ग्रोथ होता है, 10 10 10 10 and 10, which means there is no growth in the dividend or the cash flow of the company. हर साल उतना ही पैसा मिलता जाता है। कोई डाउट है तो पूछिए।
Are we good with this? हेलो सर, ये जो इन्वेस्टर को एवरी ईयर डिविडेंड मिलता रहता है, तो इसे कुछ इन्वेस्टर को कुछ एवरी ईयर कुछ इन्वेस्ट भी करना पड़ता है क्या, या कुछ देना पड़ता है, या फिर वन टाइम परचेज कर लेता है? तुम बताओ शेयर्स में कैसे होता है? ये इन्वेस्टर को जो एवरी ईयर डिविडेंड मिलता रहता है, हम्म तो इस डिविडेंड के लिए एवरी ईयर कुछ देना भी पड़ता है क्या उसे, इन्वेस्टर को? कैसे होता है इक्विटी शेयर में, तुम बताओ। आज मैंने शेयर्स खरीद लिया, फिर क्या होता है उसके बाद? उसके बाद उतना पता नहीं है सर, बट एवरी ईयर डिविडेंड मिलता रहता है। कुछ तो नहीं करना क्या होता, उस आपने डिविडेंड के लिए एक बार शेयर खरीद लिया तो कुछ पे नहीं करने की जरूरत। जब तक आपके पास वो शेयर्स हैं, आपको डिविडेंड मिलेगा। जब वो शेयर्स बेच दोगे तब डिविडेंड मिलना बंद हो जाएगा। अच्छा सर, ये शेयर सर्टिफिकेट पर सब मेंशन रहता है कि कितने ईयर तक का ये वैलिड है शेयर? कोई वैलिडिटी नहीं होती उसके पास, जब तक तुम्हारे पास है तब तक वैलिडिटी है। कैसे? अगर आपने 10 साल तक वो शेयर्स अपने पास रखा तो 10 ईयर्स के आपको डिविडेंड मिलेंगे। अगर आपने 2 ईयर्स के लिए रखा तो 2 ईयर्स तक मिलेंगे। जब तक आप शेयर अपने पास रखोगे आपको डिविडेंड मिलेगा। अपने पास मतलब आप उसके ओनर हो। ठीक है, सो इन केस नो क्वेश्चंस, जो थर्ड है डिफरेंट ग्रोथ फेजेस, ये बाद में बताऊंगा। सो अभी फर्स्ट दो ही करे हमने, कांस्टेंट ग्रोथ और नो ग्रोथ। ना अगर हम कांस्टेंट ग्रोथ लेते हैं, सो विच मीन्स इफ कंपनी का जो डिविडेंड है या कैश फ्लो है वो कांस्टेंट ग्रोथ फॉलो करता है, और वो ग्रोथ रेट मान लो G% है, तो कंपनी का जो कैश फ्लो 1 है, कैश फ्लो 1 विल बी इक्वल टू कैश फ्लो 0 इंटू 1 प्लस G लिख सकते हो। ये देखिए, कोई डाउट है तो बताइए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो 1 कैसे आया। ये सेम फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पे देखिए लगाया हुआ है।
क्लियर है CF1 का फॉर्मूला? सिमिलरली आपका CF2 क्या होगा? CF2 will be CF1 into 1 plus G. CF2 में कोई डाउट? And this can also be written as CF0 into 1 plus G raised to power 2. एक ही बात है, देखिए कोई डाउट यहाँ तक? CF2 में कोई डाउट किसी को? ये इंपॉर्टेंट पीस है, CF2 में किसी को डाउट लास्ट टाइम? सर ये और वाला समझ नहीं आया, CF4 एस्ट्रिक 1 plus G की पावर 2। जो फर्स्ट है उसके अंदर CF1 की वैल्यू रखोगे तो यही आएगा ना। ये जो CF1 है यहाँ पे, इस CF1 में ये वाले CF1 की वैल्यू डालो, ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा? देखो CF1 क्या है? ये CF1 है, इंटू एक 1 plus G और है, यही मतलब है इसका। हाँ मनमीत, सॉरी किसने पूछा था? यस यस। हाँ ये क्लियर है? ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया, ये CF1 ही है। ठीक है सर। अब इसको मैं कंबाइन करूंगा CF0 इंटू 1 plus G इंटू 1 plus G का मतलब क्या? CF0 इंटू 1 plus G रेज़ पावर 2। ओके ओके ठीक है। सिमिलरली CF3 क्या होगा? जब आपको बनाना आना चाहिए, CF3 will be CF2 into 1 plus G, CF1 into 1 plus G2 और CF0 into 1 plus G3। देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए।
You have 3 any questions? And accordingly ये CF4 5 आप प्लॉट कर सकते हैं, so मैं सीधा CF infinity प्लॉट करता हूँ. So according CF infinity क्या हो जाएगा, CF0 into 1 plus G raised to power infinity. कोई डाउट है तो पूछे. हाँ जी, good question. ठीक है. अभी ये जो वैल्यूएशन हम कर रहे हैं सारा ये इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है इंट्रिंसिक वैल्यू. What does that mean? Investor means the buyer. मतलब अगर कंपनी यस द बायर ऑफ शेयर्स बिकॉज हम डिविडेंड कंसीडर कर रहे हैं बिकॉज हाँ, कंपनी के लिए सीएमपी अंडर वैल्यूड ओवर आप तो हमेशा इन्वेस्टर ही रहोगे ना, पर आप सेलर तो ना बन जाओगे. नहीं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मेथड ऑफ वैल्यूएशन इट्स सेम फॉर द कंपनी. अभी मैं आपको इट्स सेम, बट मैं आपको आपके साइड से सिखा रहा हूँ कि आपको आसान पड़ेगा. आप ये वाला एक सीख लो, दूसरी साइड से कैसे यूज होता है वो भी आपको आ जाएगा. कराऊंगा. कंपनी भी आपके साइड से वैल्यू निकालती है पारुल, क्योंकि आप उस शेयर की जो वैल्यू रखने वाले हो वो ही कंपनी को वैल्यू पता लगेगी, तभी वो शेयर बिकेगा मार्केट में. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. फॉर एग्जाम्पल एक सेलर है, सेलर उसकी वैल्यू इसको करेंगे, इसको बायर और सेलर को बाद में करेंगे. अभी यस व्हाट यू डूइंग इज फ्रॉम इन्वेस्टर व्हाट वी आर डूइंग इज फ्रॉम इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव. यू आर राइट. हाँ जी, और कोई डाउट? ये थोड़ा हैवी रहेगा, सो प्लीज पे अटेंशन. कुछ पूछना है? सर ये CF इंफिनिटी जो है, तो ये CF0 ये मतलब हम 10 लेके चल रहे हैं कि इसमें क्या लेके चल रहे हैं कि सब में CF0 लगा दिया? CF0 जो भी होगा वो लेंगे. अभी तो मैं कोई नंबर्स नहीं डाल रहा हूँ, आपको इक्वेशन क्रिएट करना सिखा रहा हूँ. अब CF0 की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 10 होगी, जो भी होगी वो डाल देंगे वहां पे. मतलब सर ये समझ नहीं आ रहा, जैसे कि ये CF1 को ये वैल्यू वो तो समझ में आ गई कैसे निकाली, ये सब में CF0 क्यों लिया है आपने CF2 CF3 में? मतलब मैं तो इक्वेशन करके दिखाई कि क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. CF2 में CF1 से भी निकाल सकता हूँ, CF0 से भी निकाल सकता हूँ. अच्छा, इसमें खाली इक्वेशन बनाई है आपने, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है? अभी कोई कैलकुलेशन नहीं करी है मैंने, सिर्फ इक्वेशन बनाई. इक्वेशन बनाना सीख जाओगे तो एक्सेल कैलकुलेशन तो कर ही देगा. और एक्सेल में आपको इक्वेशन बनानी है, कैलकुलेशन थोड़ा करनी है. एक्सेल में आपको फॉर्मूला लगाना है इक्वेशन के लिए, ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन करके देगा आपको. करेंगे ऐसे एग्जाम्पल कराऊंगा तब आपको समझ आएगा कैसे करता है. आप इस इक्वेशन पे बताओ, कोई डाउट है तो पूछो. नहीं सर. हाँ फिर लो. नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये CF0 जो है कॉमन ले रखा है इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए. मैंने ऐसा कुछ डिवीजन नहीं ग्रोथ बताया, मॉडल. ऐसा कुछ नहीं बताया. ठीक है, मैंने अभी बोला सारी प्री असम्पशंस को साइड रहने दो. मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं बताया. ओके सर. कोई और डाउट?
ठीक है, सो अगर मैं भी इस इक्वेशन को रीराइट करूं, तो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा? अब मैं D1 की जगह अपना ये सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, CF1 की जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? ये देखिए मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे। CF1 क्या है? CF0 इंटू 1 प्लस जी है। हाँ है ना? Is this substitution okay with everyone? Any questions on this? Similarly, जो D2 है वहां पे भी मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। बट अब यहाँ पे वैल्यू जो है रेज्ड पावर 2 हो जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए। सिमिलरली D3 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं। यहाँ पे रेज्ड पावर 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट क्वेश्चन पूछिए। सर यस मैम। सर ये दोनों सेम चीजें हैं, बी इट CF और D1। या CF और D1 एक ही बात है हमारे लिए भी। उस डिविडेंड को ही मैं कैश फ्लो बोल रहा हूँ ना, तो सेम है। D and CF is synonyms for us. D is equal to CF ऐसे मान लेते हैं, ठीक है? So basically this is the another method for the calculation of the share price. Another method नहीं है, another valuation model. Okay. But dividend और cash flow same है. There is no difference for us between dividend and cash flow. जहाँ D1 लिखा है वो उसका मतलब CF1 है, जहाँ D2 लिखा है उसका मतलब CF2 and so on. Okay. So for D1 we also can use CF in the dividend valuation model, or it will remain dividend only. आप डिविडेंड रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप यू वांट मी टू यूज D1 इंस्टेड ऑफ CF1, दैट इज आल्सो ओके, कोई फर्क नहीं है। Okay. कोई फर्क नहीं, आप CF रखो D रखो, कोई फर्क नहीं। बिकॉज आगे जाके आपको सारा आपकी जो स्लाइड्स मिलेगी उसमें सब जगह CF लिखा होगा। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू यूज CF जिससे आप जब स्लाइड्स देखो तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगे। अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है मैथमेटिकली, आप D रखो या CF रखो, कोई फर्क नहीं पड़ना। Theoretically है या theoretically भी it's same? Theoretically be same, but practically we use CF. That's why I'm taking you towards CF rather than explaining it to dividend. Okay. इस मॉडल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे जाके आकांक्षा फर्क पड़ेगा, इसलिए मैं अभी से आपको CF की प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि आप CF के यूज टू हो जाओ। Okay. ठीक है। सो सिमिलरली जो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी को भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पे D इन्फिनिटी है, सो D इन्फिनिटी को मैं ये CF0 इंटू 1 प्लस जी रेज टू पावर इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस की रेज पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ जी, किसी को भी डाउट? ये जो इक्वेशन लिखी है मैंने, वैल्यूएशन की सेकंड इक्वेशन लिखी है जो फर्स्ट इक्वेशन से डिराइव करी है,
आफ्टर यूजिंग जो हमने वैल्यू यहाँ पे निकाली है CF1 CF2 CF वाली इन्फिनिटी वाली, और उसके बेसिस पे इक्वेशन हमने derive करी है. Last time, any questions in this equation? हाँ जी. So, any question? ठीक है. So in case no, ठीक है. So what we've done so far, just आपको एक बार recap कर देता हूँ so that थोड़ा सा जो भी हमने पार्ट किया आपको एक बार just you can summarize. I can summarize for you what we've done so far. We first understood when you purchase equity share what are the benefits that you get. ठीक है. तो आपको ये दो benefits आते हैं. And then we understood there are two categories of the investor, one who will sell the shares, one who will not sell the shares. Basis this, पहले हमने किया who intend to sell the shares, और उसके लिए हमने ये एक valuation model बनाया जिसको बोलते हैं adjusted dividend valuation model. ठीक है. जिसके लिए इक्वेशन बनी और हमने फिर एक की कैलकुलेशन करा और हमने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली और ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड क्या होता है वो हमने डिसीजन कैलकुलेट किया. ठीक है. फिर हम फर्स्ट कैटेगरी पे आए विच मीन्स who will not sell the shares. इसको डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल बोलते हैं. This is based on a going concern principle. What is going concern principle? Company will go for an indefinite period of time. Because this person will not sell the shares, तो इसको शेयर प्राइस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इससे इसको डिविडेंड ही मिलेंगे. बट इसको डिविडेंड कहाँ तक मिलेंगे? ये इसको डिविडेंड मिलेंगे इन्फिनिटी तक. इसलिए हमने इक्वेशन क्रिएट करा. फिर उसके बाद हमने ग्रोथ पैटर्न समझा और हमने कांस्टेंट ग्रोथ क्या होता है. कांस्टेंट ग्रोथ होता है कंपनी के डिविडेंड सेम रेट पे ग्रो करते हैं, कंपनी के कैश फ्लो सेम रेट पे ग्रो करते हैं. उसके बेसिस पे हमने CF1 क्या है, CF2 क्या है, CF3 क्या है, CF इन्फिनिटी क्या है, ये सब निकाला और इन सबको इस इक्वेशन में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा और उससे फिर ये इक्वेशन आ गई हमारी. ठीक है. ये अभी तक हमने किया. कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो बताइए. No questions so far?
जो नो ग्रोथ वाला है उसमें एडजस्टेड डिविडेंड मॉडल वाला ही फॉर्मूला यूज हो जाएगा फिर। नो ग्रोथ अभी नहीं कराया तो उसको भी रहने दो, करेंगे पहले हम भी कांस्टेंट ग्रोथ पे अच्छा। फोकस कर रहे हैं। अभी कांस्टेंट ग्रोथ कंप्लीट नहीं हुआ, इसका एक पार्ट करा, एक पार्ट कल बाकी करेंगे, उसके बाद नो ग्रोथ पे आएंगे। तो अभी पारुल, अभी बिटवीन टुडे एंड टुमारो फोकस ऑन दीज टू, फर्स्ट फोकस ऑन दिस। जब आप आज डिवाइस पे अगर करें तो योर फोकस शुड बी फर्स्ट ऑन दिस, ये पूरा आपको समझ में आ जाना चाहिए अच्छे से, ठीक है। ये पहला टारगेट होना चाहिए। दूसरा टारगेट आपका होना चाहिए कि कांस्टेंट ग्रोथ की, सिर्फ कांस्टेंट ग्रोथ की ये इक्वेशन कैसे बनी, यहां तक कैसे आए, ये दो चीजें आज अगर आपको टाइम मिले ना, वो रिक्वेस्ट कि अगर आप हाफ एन आवर 1 आवर निकाल के इसको रिवाइज कर सकते, बिकॉज कल की क्लास में ये दोनों फाउंडेशन होगी जो मैं यूज करूंगा टू टेक दिस फॉरवर्ड। ओके। हेलो सर, ये जो है कांस्टेंट ग्रोथ का, ये तो ये इक्वेशन यहीं तक है या फिर इससे और भी ड्राइव होगा? हाँ फजलूर, रिपीट करो एक बार क्वेश्चन को। सर, ये जो कांस्टेंट ग्रोथ का इक्वेशन है, इसमें और भी डेरिवेशन बाकी है या फिर इतना तक ही है? नहीं बाकी है, अभी कहा ना पार्ट 1 है, पार्ट 2 कल करेंगे इसका। ओके सर। लास्ट टाइम एनी क्वेश्चंस? ठीक है, so in case no, so we'll keep it till this point, till this part. But today we'll continue from here on tomorrow. But again, I will just repeat myself. Please try and spend some time for these parts that we've discussed today. We'll use this as a foundation for tomorrow and for completing this model and for building other models. ठीक है, so please एक बार इसको revise कर लीजिएगा। चलिए, thanks, we'll connect tomorrow. Bye.